Okay. Okay, good afternoon. Let's start. We'll start with a new unit. Second unit. Unit 2 is networking and internet. Fine. So, before we start this, I'll just remind you that I have sent one assignment yesterday. So kindly do the assignments in the notebooks and send me the PDF file by the end of the next week, like next Friday. Okay. Okay, let's start. New networking and internet, unit 2. Now, this unit will try to learn what network is, how network started, how internet started, and what all technical things are related with network also as well as internet also. Okay. So we know that with the increase in or advancements in the technology, a lot of tools and services were developed which helps the people to communicate with each other with some best way, right? The best possible way, right? So अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो if you talk about invention of printing press, it happened in 1440, ठीक है? Johannes Gutenberg, he was the one who invented printing press. तो उस प्रिंटिंग प्रेस डेवलप होने से पहले जो थे एजुकेशन सिर्फ लिमिटेड लोगों के पास ही रहती थी. So with the help of this invention, the information could be passed on in the form of books, in the form of newspapers or other printed material to various people. So information can be passed to various people. Similarly, if we talk about invention of telegraph and telephone, so with these inventions, again, there was a change in communication, medium of communication, right? टेलीफोन आया, टेलीग्राफ आया, उससे पहले सिर्फ बुक्स के थ्रू या रिटन फॉर्म में कम्युनिकेशन हो रही थी, लिख के भेजते थे लेटर्स वगैरह. तो ये टेलीफोन आ गया, टेलीग्राफ आ गया, तो कम्युनिकेशन मीन्स चेंज हो गए, राइट? Then in 20th, this happens in 19th century. In 20th century, radio, television, these things were invented. So with the help of these things, again, there was a change in communication pattern. Communication और improve हो गया. Then what happened in 1940s? America established one first network. अब नेटवर्क होता क्या है? नेटवर्क क्या है? नेटवर्क इज ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स or devices which are connected to each other either through some wires or cables, or you can say some um, wireless or wired medium. So USA के डिफेंस डिपार्टमेंट ने they created one single network where they connected 4 computers with each other. 4 कंप्यूटर्स जो थे उन्होंने कैलिफोर्निया और उताह करके 2 प्लेसेस हैं, वहां पे उनके 4 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया with the help of telephone cables, right? And the name of that network was ARPANET, right? Advanced Research Project Agency Network. So this was the name given to that network. So that was the first beginning of, you can say, the beginning of networks. The beginning of network, इंटरनेट भी वहीं से शुरू हुआ, राइट? तो ये ARPANET एक बिगिनिंग थी जब हम कंप्यूटर्स को आपस में टेलीफोन केबल्स के थ्रू कनेक्ट कर पाए. So then this keeps on growing. Then various other earlier it was limited to defense department only. Then various other universities also joined that network. फिर ऐसे ही नेटवर्क बाकी कंट्रीज में भी बनने शुरू हुए, राइट? तो धीरे 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 ये अप टू 1980s तक पहुंचते हुए तो ये बढ़ता गया ग्रुप्स, राइट? ये इंडिविजुअल नेटवर्क्स बढ़ते गए, ठीक है. देन इन 1980s में जाके फिर जब वर्ल्ड वाइड वेब का कंसेप्ट आया, राइट? वर्ल्ड वाइड वेब कंसेप्ट क्या था कि आपको चीजें ग्राफिकल फॉर्म में सर्विसेज देख सकते हो सिस्टम की,
right? So before that, it was decided to connect all such networks into a single group, right? तो इन जितने भी ऐसे छोटे छोटे नेट, जैसे ARPANET बना, ऐसे और भी नेटवर्क्स बने बहुत सारे कंट्रीज में, तो धीरे धीरे क्या डिसाइड किया गया कि इन सारे नेटवर्क्स को आपस में भी जोड़ दिया जाए, ताकि वर्ल्ड वाइड एक बड़ा नेटवर्क बन जाए, so that communications and all can be easily done across the world. So then this internet came into existence. तब आपका इंटरनेट फॉर्म हुआ, ठीक है। फिर 80s के बाद 1990s में वर्ल्ड वाइड कंसेप्ट आया। वर्ल्ड वाइड में बहुत सारी सर्विसेज, क्योंकि 1990s तक क्या था कि नेटवर्क्स तो थे, कनेक्टिविटी वाज देयर, बट नोबडी कैन एक्सेस द थिंग डायरेक्टली, बिकॉज ये नेटवर्क सारे डिपेंड करते थे बाइनरी काइंड ऑफ कमांड्स, और बाइनरी और एनालॉग, नॉट सॉरी, असेंबली काइंड ऑफ कमांड्स थे, राइट। सो ओनली एक्सपर्ट्स कैन डू दैट। नॉर्मल लोगों के लिए काम करना उस पर मुश्किल था, बिकॉज वो जिसको लैंग्वेजेस आती थी, जो समझ सकता था लैंग्वेज को, वही यूज कर पाता था, राइट। सो व्हेन दिस वर्ल्ड वाइड कंसेप्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस, वर्ल्ड वाइड में क्या था कि ग्राफिकल चीजें आ गई, ठीक है, डेस्कटॉप बन गया, फिर माउस का यूज आ गया, ठीक है, ग्राफिकल में पिक्चर्स, वीडियो, ऑडियो, ये सब चीजें एडअप हो गई। इससे क्या हुआ कि ये जो नेटवर्क था, जो इंटरनेट था, this became available for, or it was easier for a normal person also to work with that, right? फिर ये बिजनेस एप्लीकेशंस में यूज होना शुरू हो गया, लोगों को और एजुकेशन मिली, फिर एंटरटेनमेंट के पोर्शंस बीच में आ गए, म्यूजिक, वीडियो, ये सब चीजें एडअप हो गई, एंड इट कीप्स ऑन ग्रोइंग, राइट। देन लेटर ऑन वी ऑल नो सोशल नेटवर्किंग बन गई है। आजकल तो इंस्टेंट मैसेजिंग, video calls, voice call, video conferencing, lot of services are there on internet, right? So this is the basic history how this internet came into existence, right? So some more details about evolution of networks. Networks बनने की जो पूरी और कुछ और details लिखी हैं, like in 1876 Bell came forward with the concept of communication through telephone lines, right? So they created a network called as PSTN, right? Public Switch Telephone Network. In 1877 में उन्होंने नेटवर्क बना दिया टेलीफोन लाइंस का, ठीक है। सो इससे क्या हुआ, और ज्यादा बेटर हो गया सिस्टम। व्हाई? बिकॉज टेलीफोन लाइंस जो थी वो 1780s में टेलीफोन काफी पॉपुलर हो चुका था, राइट। टेलीफोन लाइंस वर अवेलेबल एवरीवेयर। तो एक अच्छा फॉर्मेट बना, अच्छा प्लेटफॉर्म बना, जिससे कि नेटवर्क्स में हम ज्यादा ग्रो सकें, इजीली वी कैन ग्रो, राइट। तो इसी कंसेप्ट को यूज करके डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ अमेरिका ने, DOD ने, ये पहला नेटवर्क बनाया था टेलीफोन लाइंस का। लेट 1950 मिलिट्री कम्युनिकेशन स्टार्ट यूजिंग टेलीफोन नेटवर्क्स। मिलिट्री में जितने भी कम्युनिकेशन होते थे टेलीफोन नेटवर्क्स के थ्रू होते थे, राइट। और ये डेडिकेटेड कनेक्शंस होते थे। डेडिकेटेड होता है जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो वो लाइन बिजी रहेगी, तीसरा पर्सन उस लाइन को यूज नहीं कर सकता, राइट। और सो अब ये डेडिकेटेड लाइंस में एक प्रॉब्लम था, दे वर वनरेबल टू डेंजर ऑफ डैमेज टू द स्विचिंग ऑफिसेस, राइट। क्योंकि बहुत ज्यादा नेटवर्क हैवी होने पे फिर डैमेजेस के चांसेस ज्यादा थे। सो ये एक प्रॉब्लम था। देन कोल्ड वार, you might have studied in classes also, in history also. डिफेंस डिपार्टमेंट डिड थॉट ऑफ कि भाई ऐसा नेटवर्क बनाया जाए जिसमें फेलियर के चांसेस कम हो, राइट। इवन इफ देयर इज ए वॉर सिचुएशन, वॉर लाइक सिचुएशन, they could easily communicate with each other, right? So these three people, Paul Barron, Donald Davis and Len Klinrock, ये तीन लोगों ने पैकेट स्विचिंग शुरू किया। इससे पहले सर्किट स्विचिंग था। सर्किट स्विचिंग में होता है
कि connection is between two dedicated people and things are sent from one end to another end, and that time the line is busy, you cannot send it further, right. और पैकेट स्विचिंग में हम क्या करते हैं कि पैकेट स्विचिंग में डिवाइड द डेटा इनटू स्मॉलर मैसेजेस, राइट, स्मॉलर पोर्शन जिनको हम पैकेट्स बोलते थे। तो उससे क्या होता था कि वी कैन सेंड दीज पैकेट्स अक्रॉस वेरियस चैनल्स एंड इससे आपका लाइन जो है हमेशा बिजी नहीं रहती थी, रिजर्व्ड नहीं रहती थी, राइट। So this was started in ARPANET for the first time by Defense Department, right? तो ये ARPANET का बिगनिंग था 1969 में। this ARPANET was formed, right? डिजिटल पैकेट स्विचिंग टेक्निक पे ये डिपेंड था, पैकेट्स में डिवाइड करके डेटा को सेंड किया जाता था, right? But this was a non-commercial use. Earlier, it was only limited to military and research purposes, right? But इसको बाद में एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को भी एक्सटेंड किया गया ताकि इसमें और स्टडीज हो सके और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सके, ठीक है। और ऐसे ही फिर कम्युनिकेशन के कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए, TCP/IP प्रोटोकॉल बना 1970s के आसपास। तो ये TCP/IP प्रोटोकॉल्स बेसिकली होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन जो एक कंप्यूटर को फॉलो करने होते हैं ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, राइट। सम स्टैंडर्ड्स में मेड ताकि कॉमन चीजें बने, फाइन। देन ये मैं बात कर रहा था 1984 में NSF नेट वाज फॉर्म्ड। NSF नेट कह लो कि ये इंटरनेट बॉर्न हुआ था। जितने भी छोटे नेटवर्क्स थे वर्ल्ड वाइड, इन सबको मिला के एक बड़ा नेटवर्क बना दिया गया जिसको NSF नेट कहा जाता था। दिस वाज डेवलप्ड इन 1984 एंड it was done by NSF, राइट, नेशनल साइंस फाउंडेशन। ये यूनाइटेड नेशंस की, यूनाइटेड स्टेट्स की ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। ये ARPANET और NSF नेट को कनेक्ट कर दिया गया, राइट। TCP/SC प्रोटोकॉल्स को उसके साथ में ग्लू कर दिया, एडप्ट कर दिया गया। इससे एक बड़ा नेटवर्क बना जिसको हम, इसका नाम दिया गया इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट इज नेटवर्क ऑफ ऑल नेटवर्क्स, fine. So this is the brief thing about internet, how this thing has started, right? So internet is a network that contains many interconnected networks. There are millions of networks which are connected to each other, right? And there is no central governing body, right? अगर क्वेश्चन आता है कि इंटरनेट कौन, who is the owner of internet, you'll say there is no owner, right? सिर्फ there are certain organizations जैसे इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स है, IETF. Now this organization helps the standardization of the protocols. जितने रूल्स बनने हैं, जितने रूल्स सिस्टम्स को फॉलो करने हैं, उनको स्टैंडर्डाइज करना, उनको कॉमन करना, इस डिपार्टमेंट का, इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है, राइट। Then some more organizations were also formed, right? So Internet Corporation for Assigning Names and Numbers, तो ये कुछ और प्रोटोकॉल्स और ऑर्गेनाइजेशंस भी बनी, राइट। फिर जब IP एड्रेसिंग का सिस्टम शुरू हुआ तो ISPs बने। ISPs इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशंस जो इंटरनेट की सर्विस को हर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब these are private organization also and government organization also which provides access to people for using internet services, right? जितनी भी आजकल मोबाइल कंपनीज हैं या ये BSNL है, कनेक्ट सर्विसेज हैं, तो ये सारे ISPs हैं। all the companies which are giving you internet services are ISPs, right? Now let's just talk about internet, sorry, networks. तो ये तो हो गया इंटरनेट का स्टार्टिंग।
अब नेटवर्क का पहला इम्पोर्टेंट टास्क एडवांटेज ये है कि पहली चीज तो नेटवर्क काम कैसे करता है, दूसरा नेटवर्क का फायदा क्या है, व्हाई डू वी नीड ए नेटवर्क, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर वेरियस एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग नेटवर्क, राइट। एक तो हो गया कम्युनिकेट करना, one computer can send message to another computer, communication is possible. Then we can share a lot of resources, we can share internet, we can share one printer, जैसे एक नेटवर्क है स्मॉलर नेटवर्क जिसमें 10 कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया है, सो इंस्टेड ऑफ इंस्टॉलिंग one printer with each computer, you can connect them with network और नेटवर्क में एक प्रिंटर लगा देंगे तो सारे उसको यूज कर सकते हैं, right? So we can say sharing of resources can be done, sharing of softwares can be done, right? Ab now there's one diagram given here which shows you one way simple communication system. One way we is जहाँ पे एक sender है, एक receiver है, sender sends the message to the receiver, right, through a channel. Sender is the node responsible for sending data, sender सिर्फ send करता है डेटा को, receiver node सिर्फ receive करता है डेटा को, और मैसेज वो इंफॉर्मेशन है या वो डेटा है जो कम्युनिकेट हो रहा है, और चैनल वो मीडियम है जिसके थ्रू कम्युनिकेट हो रहा है, जैसे टेलीफोन केबल्स के थ्रू अगर डेटा जा रहा है तो वो टेलीफोन केबल्स इज द चैनल, राइट, और यू आर सेंडिंग समथिंग थ्रू वाईफाई, लेट्स से वाईफाई इज द चैनल. So these are four components of networks: sender, receiver, message and channel, right? जैसे ये एक एग्जांपल है, कंप्यूटर सिस्टम A is the sender, printer is the receiver, and the cables which are connecting these computers are the channels. And यहाँ से print command दिया तो वो message जाएगा printer के पास, that message is delivered to the printer and then based on the message printer starts working. ये वन वे कम्युनिकेशन है क्योंकि प्रिंटर वापस कुछ नहीं भेजता, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सिंपल मोड, सिंपलेक्स मोड, इसको वन वे भी कह सकते हैं, वन डायरेक्शनल, राइट. सो अ मैसेज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन नोड मतलब एक डिवाइस जो कनेक्टेड है नेटवर्क को, उसको नोड बोलते हैं. सो मैसेज विच इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम सेंडर नोड टू द रिसीवर नोड only, there is no feedback, there is no revert, उसको हम simplex mode बोलते हैं, one direction, right? It is unidirectional, only one direction, right? Computer networks में data transmitted using fiber optics and satellite is example of simplex mode. अगर आप फाइबर ऑप्टिक केबल से डेटा सेंड कर रहे हो तो वो वन डायरेक्शनल होगा, और सैटेलाइट से डेटा सेंड कर रहे हो वो भी वन डायरेक्शनल होता है, वो सिंपलेक्स मोड है, ठीक है. हाफ डुप्लेक्स इज बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल मतलब टू वे, तो एक ही चैनल में डेटा जाएगा भी और आएगा भी, ठीक है. बट हाफ डुप्लेक्स में एक प्रॉब्लम ये होती है कि ओनली वन नोड कैन ट्रांसमिट एट वन टाइम, दोनों एक साथ ट्रांसमिट नहीं कर सकते, ठीक है. मान लो दो कंप्यूटर्स हैं, जैसे कंप्यूटर ए इज सेंडिंग समथिंग टू कंप्यूटर बी, कंप्यूटर बी कैन आल्सो सेंड द सेम डेटा और सम अदर डेटा टू कंप्यूटर ए, both can send to each other, तो ये डुप्लेक्स हो गया, राइट. बट ये हाफ डुप्लेक्स अगर है तो when A is sending the data, B cannot send it, जब A का डेटा पहुंच जाएगा then B can send it, मतलब चैनल जो है एक टाइम पे एक ही सिस्टम यूज कर सकता है, राइट. दैट इज हाफ डुप्लेक्स, राइट. सो whenever we have low bandwidth settings, मतलब अगर आपका नेटवर्क का जो बैंडविड्थ है वो कम है, स्मॉलर है, जैसे केबल्स ऐसे हिसाब के लगेंगे, ज्यादा डेटा नहीं जा सकता, देयर वी यूज हाफ डुप्लेक्स, राइट. और जो फुल डुप्लेक्स है उसमें बोथ द कम्युनिकेशन पार्टीज कैन सेंड एंड रिसीव एट द सेम टाइम, तो फुल डुप्लेक्स में दोनों सिस्टम्स एक दूसरे को डेटा सेंड कर सकते हैं एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली यूजिंग द सेम कॉमन चैनल, राइट. So your NIC card that
is installed. NXE card हमने पिछले चैप्टर में किया था. So ये it's a small chip kind of thing which is installed at the back of the CPU, right? And it is a place where we connect the cable. NSE कार्ड वो पोर्ट है CPU के अंदर जिसपे हम केबल को कनेक्ट करते हैं. तो ये NIC कार्ड जो है ये फुल डुप्लेक्स मोड पे वर्क करता है, राइट. द कार्ड इज सेंडिंग द डेटा आल्सो एंड द कार्ड इज रिसीविंग द डेटा आल्सो एट द सेम टाइम. ठीक है, जब आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो तो सेंडिंग रिसीविंग दोनों चीजें साथ साथ चलती रहती हैं. ये NIC कार्ड फुल डुप्लेक्स मोड का एग्जांपल है, राइट. सो दीज आर द, ये आगे टॉपिक है कि व्हाई डू वी नीड अ नेटवर्क. दिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट वी कैन शेयर द रिसोर्सेज, right? Like I told you that if we have, let's say, one printer installed in a network of 10 computers, so all these 10 computers can use that same printer, right? So we say that we are sharing the hardware resources. Okay, so similarly scanners can be shared, even CPUs can be shared, memory devices can be shared, one computer memory can be shared by other computers also. So ये sharing of hardware is also there, plus sharing of text message, sharing of software, sharing of files, audio video content, that can also be done. So resource sharing is very big advantage, right? जैसे ये example है, computer A, B, C all can use this printer, right? So ये sharing of resources का example है. तो ऐसे ही अगर हम इंटरनेट सर्विस की बात करें, यू हैव वन मॉडेम इंस्टॉल्ड, सो ऑल कंप्यूटर्स कैन एक्सेस दैट सिंगल मॉडेम, सब पे इंटरनेट चल सकता है. ठीक है, इसलिए हम लोग जैसे इन आवर स्कूल आल्सो वी हैव ओनली वन इंटरनेट कनेक्शन इन द स्कूल, एंड एवरीवेयर द सेम कनेक्शन इज बीइंग शेयर्ड, राइट. वाईफाई में भी वही चलता है, जो वायर्ड है लैब्स में भी वही चलता है, और जितने भी नीचे ऑफिस के कंप्यूटर्स हैं उनमें भी वही सेम शेयर हो रहा है. तो कनेक्शन एक ही है, शेयर हर जगह वही कर रहे हैं हम लोग, राइट. दैट इज रिसोर्स शेयरिंग, सॉफ्टवेयर रिसोर्स शेयरिंग. Another example, advantage of network is communication, that computers they can communicate with each other, they can send and receive messages which is there, right. तो ये हो गया. Next thing is we'll learn about transmission mediums. मीडियम का मतलब है जो चैनल यूज करना है ट्रांसमिशन के लिए, राइट. सो व्हाट इज द चैनल यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन? See, transmission can happen in two forms. One is guided, one is unguided. Guided का मतलब है जो फिजिकल कनेक्टर्स के साथ फिजिकल केबल्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है, वो गाइडेड है. अनगाइडेड जिसमें देयर इज नो फिजिकल केबल. सो गाइडेड हो गया वायर्ड मीडियम, अनगाइडेड हो गया वायरलेस मीडियम. ठीक है. So in guided we have different kinds of cables, जैसे twisted pair cable है, coaxial cable है, fiber optic cable है. ठीक है, इनको यूज करते हैं. Unguided में we use different wireless mediums like your microwaves are used sometimes, radio waves, infrared, Bluetooth, right. So ये दो कैटेगरीज हैं ट्रांसमिशन मीडियम की, राइट. सो इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, मैं बता देता हूँ कि जैसे गाइडेड में ट्विस्टेड पेयर केबल इज द कॉमन केबल दैट यू सी, राइट. इस केबल में दो पेयर्स होते हैं वायर्स के, राइट. कॉपर वायर्स होती हैं जैसे आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी की केबल है वैसी ही, राइट. और ट्विस्टेड पेयर में मल्टीपल पेयर्स कैन ऑल्सो बी देयर, जैसे कैट 5 कैट 6 केबल्स आती हैं, और इथरनेट केबल्स हैं, उनमें चार चार पेयर होते हैं. there are 4 pairs, 4 मतलब 8 wires are there, 2 for each, 4 pairs of wires are there.
कोएक्सियल इज जस्ट लाइक योर केबल टीवी वायर, जिसमें एक कॉपर वायर सेंटर में है, ऊपर जाली सी मेश सी रहती है, राइट? दैट सेंट्रल कॉपर वायर इज यूज्ड फॉर transmission. So coaxial are stronger than twisted pair, so they can travel longer distances. So अगर आपको पूरा सिटी कवर करना है तो हम कोएक्सियल केबल प्रेफर करते हैं। ट्विस्टेड पेयर खराब होने के चांसेस ज्यादा है। कोएक्सियल is stronger. Optical fiber cables, they uses glass fibers. So ग्लास फाइबर से बनी होती है, और इनमें जो डेटा जो ट्रांसमिट होता है, डेटा इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ light signals, right? So data is converted into light beams, and then that optical matlab lights, so data is transmitted in the form of light laser beams, right? So now you know the speed of light is too much, right? So they are the fastest, optical fibers are the fastest, right? And they are stronger also as compared to coaxial and twisted pair. बट उसमें फाइबर्स जो यूज होते हैं वो थोड़े फ्रेजाइल भी होते हैं, समटाइम्स दे मे ब्रेक, राइट? तो ऐसे ही अनगाइडेड में वी हैव रेडियो, माइक्रो एंड इंफ्रारेड। इंफ्रारेड की एग्जांपल आपका टीवी का रिमोट है। इंफ्रारेड लाइट कैन नॉट पेनिट्रेट द वॉल्स, वॉल्स से दूसरी तरफ वेव्स नहीं जा सकती हैं। अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आती है, कोई वॉल आती है, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, जैसे टीवी का रिमोट है, राइट? अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में टीवी का रिमोट चलाओ तब भी टीवी ऑन हो जाता है, राइट? बिकॉज दैट वेव कैन नॉट गो बियॉन्ड द वॉल। माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, दे बोथ कैन go रेडियो वेव्स कैन गो बियॉन्ड द ऑब्स्ट्रक्शंस। रेडियो वेव्स कहीं पे भी, जैसे आपका एफएम रेडियो है, एफएम रेडियो की जो वेव्स हैं वो कहीं पे भी ट्रेवल कर सकती हैं, उनको ऑब्स्ट्रक्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइक्रोवेव में भी ऑब्स्ट्रक्शन की प्रॉब्लम है, बट माइक्रोवेव्स दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे कैन ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंसेस, ठीक है? जैसे ओशंस के ऊपर से कुछ ट्रांसमिट करना है तो हम माइक्रोवेव से ट्रांसमिट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग वेव्स होती हैं और बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकती हैं, राइट? So that's it, and we'll start with the network devices next time. I'll end up the class here. So kindly go through the things, and still if you need any kind of help, you people can ask me anytime.